और रिकॉर्डिंग अब ऑटोमेटिकली है, वो ऑन है। इस गुड एक्सेल में ऑन करने भूल जाया करता था। Okay, so in the last, okay, the online audience, do you hear me? Yes, sir. But the one thing more I want to suggest for you, मर्जी आपकी है, आप बहुत सारे मेरे पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि in that condition you can divert yourself, तो मत लिखें कुछ भी, सिर्फ यहाँ पे सुने मुझे carefully, और ये रिकॉर्डेड हमारे पास पूरा लेक्चर मौजूद है, and you have the link to this lecture. जब आप इसको पढ़ने बैठें तो चैप्टर के साथ इसको भी साथ में देख लें, and you will have an excellent idea about it कि हमने क्या चीज़ें समझी हैं और किस सीक्वेंस में इसको पढ़ने की कोशिश की है, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपको लगता है कि आप डाइवर्ट होते हैं। अदरवाइज नोट्स बनाना क्लास में बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, सो आगे थोड़ा सा मूव करने से पहले आई हैड अ क्वेश्चन फॉर रिजवान, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ओएसिस? यस, Okay, cis is a bacteria or protozoan in dormant conditions when it will form a layer around it to protect from the harsh environment. Okay, and oocyst? Okay, oocyst is a stage in the protozoan development when there is a thick wall around the embryo, and that is not present in the bacteria. Good. So this was the answer. और oocyst और cyst दोनों हमारे लिए डिजीज स्प्रेड करने में रोल प्ले करते हैं। कैसे? cyst जो कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है अराउंड द बैक्टीरिया, द प्रोटोजोन, it can bear the harsh conditions and it can revive whenever the conditions are favorable. कौन? cyst. oocyst, that is a stage in the development of the protozoan in which there is a thick wall around the embryo, and in that condition embryo can also bear the harsh conditions. Okay, तो जब भी conditions favorable होंगी, that embryo or that growth stages they would revive again, और इस केस में फिर हमारे पास दोनों खतरनाक हो सकते हैं, to protect the to spread the infection through contaminated water, और इसको किल करने के लिए हमने पढ़ा था कि we would go for the boiling procedures। इसके अलावा हमने नेकेड वायरसेस का और एनालॉग वायरसेस का डिफरेंस पढ़ा था, number of microorganisms that are initially present, they may have effect on the control procedures, and we should select the control procedures depending upon the number of microorganisms that are initially present, and in that point I gave you the example that if my hands are contaminated with the E. coli and I have dealt with some microbial plague, and now I will use some more stringent control techniques. Otherwise, during our daily life, I will just wash my hands with the soap. अच्छा, अगला जो हम पढ़ने लगे हैं, that is about the DRT. This is called decimal reduction time. We have discussed it that microorganisms died logarithmically. They will die logarithmically. और इसमें हमने ये पढ़ा था कि whenever the microorganisms they grow, they also grow or they divide logarithmically. और उसमें हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि if the number of microorganisms are present 10 raised to power 0, 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, and 10 raised to power 3, 4, and continue. ठीक है? This is what happened. Don't 1, 2, 3, or इस केस में we can have this is a logarithmic growth of the microorganism, and in other words, it is exponential growth. जब microorganism, this is growth, जब death होगी, सर आपका कैमरा ऑन नहीं है। oh I forgot. Okay, I forgot. अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि this one microorganism when they will start their growth is logarithmically or exponentially 10 to the power 0, 1, 2, 3, and death is also logarithmically. ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में।
10 raised to power 0, that will be equal to 1. 10 raised to power 1, 10, 100, 1000. Okay. अब decimal reduction time is the time in which a microbial population reduced up to 90%. For example, if there are 100 cells in a plate और आप इनको इस प्लेट को ऑटोक्लेव कर रहे हैं या इस प्लेट को हीट कर रहे हैं और 2 मिनट्स के बाद इस प्लेट पे सेल बाकी रह जाते हैं 10. दिस इज द 90% रिडक्शन. ऐसा है तो दिस 2 मिनट वुड बी द DRT, डेसिमल रिडक्शन टाइम ऑफ दैट स्ट्रेन. अब ये 10 था, अब इसको एक और DRT दें, नेक्स्ट DRT, वो भी 2 मिनट की होगी और उसके बाद कितने 90% रिडक्शन होगी और सेल्स कितने बाकी बचेंगे 1. It means that if there are 100 cells in a sample, it will take 2 DRT या 2 decimal reduction times to get reduced up to the 1 cell. Got it? Decimal reduction time. और मिसाल के तौर पे ये जो 90% रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीटिंग कर रहे हैं तो इस पे रिडक्शन हो रही है. तो हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी यूज करेंगे इस वर्ड को लिखेंगे तो हम D इसके साथ हम टेम्परेचर लिखेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन करेंगे हम इसको. ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका. दिस इज डेसिमल रिडक्शन टाइम एंड नॉर्मली 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन दैट वुड die. और अब अगर हम इसको अपने प्रीवियस कंसेप्ट के साथ देखें, 10 raised to power ये लॉगरिथमिक कंसेप्ट के साथ देखें तो 10 raised 100 सेल्स 10 raised to power 2 सेल्स एक डेसिमल रिडक्शन के बाद दे वुड रिड्यूस अप टू 10 raised to power 1. तो डेथ अभी भी लॉगरिथमिकली ही प्रूव हो रही है. और 10 raised to power 3 थे, अब 10 raised to power 3 में 1000 सेल थे, 100 हो गए, यानी कि 900 की डेथ हो गई, 90% की डेथ हो गई. यहाँ पे 90 की डेथ हुई और यहाँ पे 9 की डेथ हुई. तो लॉगरिथमिकली ही डेथ हो रही है, बट दिस वुड कम इन द डेसिमल रिडक्शन टाइम. अच्छा, अब डेसिमल रिडक्शन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा अगर इसको मजीद देखें तो एक ग्राफ आप अपने चैप्टर में देखेंगे. उस ग्राफ को जरा देखिएगा. यू कैन हैव सम क्वेश्चंस. उस ग्राफ का जवाब देखेंगे. मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली नहीं उसको शो किया ताकि आप एक दफा खुद से देखें. एंड इफ यू गाइस आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, मुझे बताइएगा, फिर इसको क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको उस पर सोचना चाहिए खुद से. दिस इज DRT. अब मेरा यहाँ पे सवाल है आप लोगों के लिए. यस, सवाल ये है कि इफ देयर आर 10 raised to power 10 cells in a sample, how much DRT they will take to get reduced up to 10 raised to power 1. सवाल समझ में आया? 10 raised to power 10 cells हैं initially. How much DRT they will take to get reduced up to 10 raised to power 0? करें जरा. जी समझ नहीं आई. नहीं, मिनट्स में नहीं पूछ रहा. हाउ? चलें, मैं इस क्वेश्चन को मजीद आपके लिए चेंज करता हूँ. देयर 10 raised to power 10 cells और 1 decimal reduction that is equal to 1 decimal reduction that is equal to 2 minutes. मुझे अब बताएं कि टोटल टाइम कितना लगेगा. टाइम बताएं. हाउ?
और हर बार 2 मिनट्स 11 बार हो गई या 10 बार होगी सोचें तो 2 मिनट्स 10 इज इक्वल 10 इसको रिड्यूस करना 10 इक्वल 0 पे कितना लेगा वो टाइम कितना लगेगा मुझे ये बताना टोटल कितनी देर के लिए फॉर एग्जांपल आपको हीट करना पड़ेगा बोर्ड पे आके करना पड़ेगा जी जरा ध्यान से कर लीजिएगा रिजवान समझ में आ गया क्वेश्चन गुड अगली क्लास में ना आप दोनों ने करेंगे एक ने इस चेयर पे बैठना एक ने वो सोने का चेयर है उसमें ठीक है और उसको शनीक जो है वो क्लास से पहले या बाद में करना है कैसे 18 से स्टार्ट हो गए 22 तक गए आप लोग नहीं सर 20 यस सर हाउ चलें आ जाए कोई वॉलंटरली आ जाए बोर्ड पे कुछ है और थोड़ा सा इसको ज़रा बता दें फिर देख लेते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं क्या कहते हैं 22 18 से 22 बड़ा जंप लिया 4 मिनट्स अच्छा चलें कौन आ रहा है आ जाए आप आ जाए आपका नाम नहीं बच्चे में जाता आ जाए How it will take 20 minutes to get to the plan for कुछ नहीं होगा अच्छा ये मैंने वो 4 पॉइंट्स से बनाए हैं इनके दरमियान में करना है यही क्या है नजर आता है ओके सर 10 to power 10 से अगर हम हमारे मिनट से और अगर इसी तरह हम 10 पावर 9 से 10 पावर 0 तक जाए तो हमारे पास टोटल 10 डिविजन आ रही हैं तो सर अगर एक डिवीजन में हमारे पास 2 मिनट लगते हैं तो फिर 10 डिविजन तो आप इसको उस फॉर्मूला से कर सकते जो हमने पहले डिस्कस किया था 2 रेज़्ड टू पावर n वाले से नंबर ऑफ डिवीजंस और टाइम कितना इस्तेमाल हो रहा है उसमें हम कर तो सकते दिखाएं नहीं वैसे तो इट्स फाइन आप अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं बट आंसर इज द 20 मिनट्स इट विल टेक 20 मिनट टू गेट रिड्यूस अप टू 10 + 0 और इसमें सिंपल सा क्लू इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि जो 10 × 10 था और 2 मिनट्स था एक DRT और हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि इस 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि यस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा सिंपली कभी भी अगर 10 to the 9 सेल्स हैं आपके पास और डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है वो 3 मिनट्स है दैट विल टेक 27 मिनट्स ठीक है सिंपली इस तरह से आप कर सकते हैं वैसे ठीक है स्टेप वाइज ऐसे वैसे मुझे स्टेप वाइज चीजें समझ नहीं आ रही चलें सो नेक्स्ट वन इज दैट एनवायरमेंटल कंडीशन अभी तक हमने कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि वी कैन कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर necessary to control because we cannot we cannot leave them uncontrolled और उन्हें ये हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स पढ़ी हैं इसके अलावा डेसिमल रिडक्शन टाइम अब अगली बात ये है कि कंट्रोल करने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं उन मेथड्स में हमारे पास बॉइलिंग है हीटिंग है केमिकल्स का यूजेज है यूवी रेडिएशन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा और हम इन मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वन वुड बी द फिजिकल control and second will be the chemical control ठीक है physical and chemical control
फिजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। अब फिजिकल कंट्रोल जो है उसमें हमारे पास जो चीजें आएंगी फिजिकल कंट्रोल में, उसमें हमारे पास आ सकती है बॉइलिंग, उसमें हमारे पास आ सकती है बॉइलिंग भी नहीं बल्कि इसको मैं लिखूंगा हीटिंग, ठीक है। हीटिंग आ सकती है, इसमें हमारे पास रेडिएशन इररेडिएशन आ सकती है, इसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन आ सकती है, इसमें हमारे पास यस ये चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा हीटिंग को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन विल बी द ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट। मॉइस्ट हीट की दो एग्जांपल्स हैं। मॉइस्ट हीट की दो एग्जांपल्स हैं, एक को हम कहते हैं बॉइलिंग, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग, एंड नंबर टू दैट विल बी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में डिफरेंस ये है कि वी प्रोवाइड द प्रेशर। क्या होगा उसकी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ड्राई हीट जो है, ड्राई हीट बड़ी कॉमन है। ओवन चल रहा है, अगर ओवन और ओवन का टेम्परेचर आपने लिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड और उस पे प्लेट को रख दिया, दैट इज द ड्राई हीट। दोनों का मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाउ वुड दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट है। इसमें हम बात करेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो केमिकल मेथड्स हैं, chemical method definitely that would be the use of chemicals. That chemicals may involve halogens, they involve alcohols, they involve bigenides, they involve aldehydes, etc etc। उस पर भी हम डिटेल में वन बाय वन बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब मसला ये है कि हम कोई भी केमिकल यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं दैट हैव देयर इफेक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को किल करने के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका बड़ा सॉलिड रोल है। अब सॉलिड रोल की एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं और हमने कल भी इसकी बात की थी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है दैट में भी दैट हैव वैक्सी लेयर, वैक्सी सेल वॉल, सो दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल होगा। अच्छा, अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम नॉर्मली किल करते हैं बाय यूजिंग द सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे किल हो सकता है। अब यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना बताने लगा हूँ कि व्हेनेवर वी विल यूज द सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज जो है इसकी इट्स इफेक्ट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसमें एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड दे रहे हैं तो हमें इसका एक्सपोजर देना पड़ेगा 150 सेकंड्स के लिए। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर दिस वन अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो साथ ही हमारे पास जो एक्सपोजर टाइम है 60 सेकंड्स तक आ जाता है, 60 सेकंड्स तक आ जाता है, ठीक है, सिर्फ 5 डिग्री इंक्रीज करने की वजह से। इसी तरह से और हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अगर टेम्परेचर रिड्यूस डाउन करें तो हमारे पास जो कोई भी कंट्रोल मैकेनिज्म है दैट इट्स इफेक्ट में वेरी। तो दिस वाज अ सिंगल एग्जांपल। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना जरूरी है। देयर आई टोल्ड यू कि जब भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की बात करेंगे एंड व्हेनेवर वी हैव टू डील विद द ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड the greatest instrument that is available in the microbiological labs, so उस केस में we have to take a complete control on the microbial growth। अब हम इस पॉइंट से अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स को जब हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगराइजेशन वी यूज डिफरेंट कंट्रोल मेथड्स। मिसाल के तौर पे जो नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स which are being used in the hospitals and in daily life, and they do not have their contact with the broken skin. मिसाल के तौर पे स्टेथोस्कोप, this is non-critical instrument. इसको स्टेराइल करना आसान है, जस्ट अल्कोहल स्वैब के साथ स्टेथोस्कोप को साफ करते हैं, वाइप करते हैं। Second, semi-critical instruments. Semi-critical instruments are the instruments that do not have direct contact with the blood cells or the blood vessels or such like that, but they have the direct contact with the
एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि एंडोस्कोपी में जो गट में कैमरा इंसर्ट किया जाता है, वो कैमरा बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर डायरेक्ट स्किन के साथ, ब्रोकन स्किन के साथ कांटेक्ट में तो नहीं होता, लेकिन जो गट की एपिथेलियल लेयर है उसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, सो दैट वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट होंगी, बट नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज फॉर द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस कैटेगरी में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे दैट आर इन्वॉल्व इन द सर्जरी, scalpels, other blades, scissors, etc. They are in direct contact with the broken skin, bloodstream, blood vessels. So they should be they should be sterile carefully. अब उसके लिए हम critical instruments के लिए hospital में बहुत common है the use of autoclave. ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल होता है, और ऑटोक्लेविंग के दौरान में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट किया जाता है उसके प्रिंसिपल पे इसके बाद बात करते हैं। जो सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे कैन बी स्टेराइल बाय द यूज ऑफ सम केमिकल एजेंट्स, और जो नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी केमिकल एजेंट्स के साथ हम या इवन इरेडिएशन से हम इसको स्टेराइल कर सकते हैं। सो दीज आर द पोटेंशियल रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, और डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन हैव सम डिफरेंट प्रोसीजर्स दैट मे बी देयर। अच्छा, अब थोड़ी सी आगे अगर बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एजेंट्स, तो जो डिफरेंट केमिकल एजेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें माइल्ड हीट, डाइल्यूट एसिड्स, अल्कलीज, सम अदर एजेंट्स, इसको शॉर्ट टाइम के लिए करना है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए करना है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने लगा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द ऑटोक्लेविंग प्रोसेस। यहाँ चूंकि मैं बता चुका हूँ ऑटोक्लेविंग दैट वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट, और फिजिकल ट्रीटमेंट में कौन सी, हीटिंग, और हीटिंग में कौन सी, मॉइस्ट हीट। तो जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है हमारे पास कि आपने कभी ऑटोक्लेव किया थी लैब में? हमारी लैब में ऑटोक्लेव है, 2 पड़े हुए किया खुद से, उसको वो उसके वॉल शॉल और उसको ऑपरेट प्लीज करना सीख लें, ऐसे मत सर हिला दिया करें। ऑटोक्लेव इस्तेमाल करना सीखें, ये जरूरी होगा। अच्छा, देखा तो है ना वैसे अगर इस्तेमाल नहीं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर इसका प्रिंसिपल सिंपल प्रेशर कुकर वाला प्रिंसिपल है। वी हैव अ वाटर इन इट, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हम उसके अंदर रख देंगे, जो भी पैटी प्लेट है, फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है, हम उसको रखेंगे और उसके बाद वी विल टर्न ऑन इट। जो वाटर है वो बॉयल होगा। अब प्रेशर कुकर की तरह इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा, अब जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा आफ्टर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स देयर वुड बी टाइम, एट दैट टाइम द टेम्परेचर वुड बी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर होगा, ये टेम्परेचर है, प्रेशर होगा 15 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। और ये जब हमारे पास टाइम आ जाए then we have to maintain these two conditions for 15 minutes। 15 मिनट के लिए इन 2 कंडीशंस को मेंटेन रखना है। उसके बाद you will turn off the autoclave, ऑटोक्लेव टर्न ऑफ करेंगे और स्लोली इस प्रेशर को रिलीज करेंगे, जिसे हम प्रेशर कुकर से स्लोली करते हैं रिलीज, स्लोली रिलीज करेंगे when the pressure will be released out and the resultant temperature will be decreased। और इस केस में आप क्या करेंगे, हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कंबाइन दिए हैं हर, और इस केस में the principle of the autoclaving is the coagulation of the proteins that are present in the microorganisms, and autoclave that has ability to kill vegetative cells and the spores as well as viruses. So it is the method for the sterilization according to the definition of sterilization that we have discussed in the previous session. Sterilization is the complete removal of the vegetative endospores and the viral cells. Oh, so not viral cells, vegetative cells, virus and endospores. और autoclave में हमारे पास ये दोनों कंडीशन मेंटेन रखनी है। हरगिज ये नहीं करना कि ऑटोक्लेव टर्न ऑन किया और 15 मिनट के बाद उसको कहा कि ठीक है हमारा हो गया, हमने खोल दिया। नो, यू हैव टू मेंटेन दीज 2 कंडीशन फॉर द 15 मिनट, और ऑटोक्लेव ऑन होने से लेके इन कंडीशन तक आने में 30 से 40 मिनट्स लगेंगे ऑटोक्लेव को। उसके बाद ये कंडीशंस आएंगे, देन यू विल मेंटेनिंग दीज 2 कंडीशन अप टू 15 मिनट्स। बहुत सारे ऑटोक्लेव ऑटोमेटिक हैं
उसके अंदर जस्ट चीज़ें रखें, प्रोग्राम सेट करें, टर्न ऑन करें, वो सारा काम खुद करने के बाद जब ऑफ हो जाएगा अलार्म देगा कि इसको खोल लें एंड आप इसको खोलना है। दैट्स इट। हमारे पास जो लैब में है ये ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जांपल इसमें हम चीज़ें रख के उसको बंद कर देंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे तो वो खुद से अपना विसल देगा, प्रेशर कुकर की तरह विसल देगा, जिसके बाद हम टाइम नोट करेंगे कि कंडीशन आर मेंटेन। 15 मिनट नोट करेंगे खुद से हम, उसके बाद उसको ऑफ कर देंगे। इससे पहले जब हम BS में थे तो ये वाले भी नहीं थे हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास दूसरे ऑटोक्लेव थे, उसमें विसल भी नहीं होती थी। हमने वो एक उसके ऊपर एनालॉग मीटर लगा होता है, इसमें भी लगा हुआ देखें, नहीं ऑटोक्लेव देखें, लैब में जाते हैं। This is good news for me that you have visited the lab and the lab is very fortunate that आपने उसको मौका दिया। और कभी उसमें वो चीज़ें जो पड़ी हैं उनको हाथ से आप लगाया कि नहीं? लगाते हो कहते हैं ना लगाओ। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भाई वो खुद ही कर रहे हो, लेकिन आपको पता तो होगा इसको चला कैसे। देखें वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इस तरह अलाउ नहीं किया जा सकता तो एक अच्छा खासा बस्ट करेगा, इतना बड़ा होगा वो है, तो आप देख तो सकते हैं उनको काम करते। मेरा जो है डिमांड भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, उनको देखें तो पूछें कैसे करना है इसको। ऑटो के लिए वेजल पड़ी हुई है जी हमारी दोनों लैब्स में, एंटर हो तो सिल्वर कलर की। किसने नहीं देखा था? एक तो उन्होंने कहा था मैंने नहीं देखा हुआ, हाँ चलो देखिए वो दिस इज ऑटो क्लेव, वो लंबा सा है यहाँ तक है तकरीबन, उसके ऊपर एक लिड होता है, वो प्रेशर कुकर की तरह उसको पहले टाइट कर रहा होता है। दैट इज ऑटो क्लेव। आपने अगली क्लास में मुझे ये बताना है कि आपने ऑटो क्लेव देखा है और आपने इसको चलाने का प्रोसीजर भी देखा है। और कौन है किसने नहीं देखा हुआ? नहीं देखा? आप इनके साथ में दोनों मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि यू हैव वॉच द ऑपरेशन ऑफ दैट ऑटो क्लेव, कि कैसे इसको रन करना है, कैसे ऑन करना है। दोनों और कौन है इनके दोनों के साथ? आप हाथ खड़ा करेंगे? अच्छा वो फिर हाथ खड़ा करने का रिस्क नहीं ले रहे, देखो उन्होंने लेने हैं। नहीं वहाँ पे वो मौजूद था तो वो हमने दोनों लैब्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुद खरीद के लेके आए हैं और रखे हैं, तो ये मत करें। उसको देखें प्लीज। ये नहीं कि स्पेशल जाके हमें चला के दिखाएंगे। जब आपका लैब एक्सपेरिमेंट हो एंड दे आर ऑपरेटिंग इट, आप उसको देखें, कीनली देखें कि चीज़ें किस तरह से ऑपरेट हो रही हैं। नहीं फिर से बोलना, मैंने बात पहली सुनी। वो देखना वो आपको खुद परफॉर्म करना चाहिए। चलें वो अच्छा है, लेकिन वो आपका लैब एक्सपेरिमेंट है, मुझे याद है कि इस लैब में कभी मैंने ऐड किया था, वो तो आएगा। और ऑटो क्लेविंग बिल्कुल ये काम टेक्नीशियन से करने वाला नहीं है, ये ग्रेजुएट्स को पता होना चाहिए। ट्रबल शूटर्स आर द ग्रेजुएट्स प्लीज, तो इससे नो होना चाहिए। एनीवेज ऑटो क्लेव ये प्रोसीजर है, प्रिंसिपल्स का मैंने बताया। प्रोटीन कोएगुलेट करती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, एंड इन दैट सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे वुड डाई किल्ड, और हम कहेंगे कि द आइटम इज स्टेराइल। अब उसमें ऑटोक्लेव जब हम देखते हैं, आपने खैर देखा नहीं हुआ, मैं उसको कैसे वो कराऊँ, इमेजिन करवाऊँ। ऑटोक्लेव के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की वेजल है, लाइक दिस, इस तरह की वेजल हुआ करती है। इसको हम ऊपर से यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं, जस्ट लाइक द लिड ऑफ द प्रेशर कुकर, और यहाँ से हमने इसको हीटिंग रॉड है इधर, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये इलेक्ट्रिक रॉड है जो कि यहाँ तक वाटर हुआ करता है और ये पानी को हीट अप करता है, और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है इस तरह लोहे का। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बकेट रखते हैं हम, लाइक दिस। इस बकेट के अंदर जो भी चीज़ आपने ऑटोक्लेव करनी है वो इसके अंदर रख देनी है। फॉर एग्जांपल बैटरी प्लेट्स का स्टैक है तो इसके अंदर ऐसे बैटरी प्लेट्स आ जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस, बैटरी प्लेट्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब ये बकेट जो है इसके अंदर हम सारी चीज़ें रख देते हैं। अब होता क्या है बाद में क्लास में रिजवान भी अपना काम कर रहा है, आप भी कर रही हैं, 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 तो एक दफ़ा ऑटोक्लेव चलना है, उसको चलने में टोटल टाइम उसको 45 to 50 मिनट्स चाहिए। बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं कि हम वेट नहीं कर सकेंगे, हमारा इसी बैच में चला दें। तो हम ये जो बकेट है इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी प्लेट रख दी, जो साथ में जगह बची वहाँ पे टेस्ट ट्यूब घुसेड़ दी, यहाँ पे इस तरह पूरा भर दिया उसको, इतना भर दिया कि जो इसके अंदर स्टीम जनरेट हो रही है, स्टीम इज अनएबल टू सर्कुलेट दिस स्पेस। देखें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो स्टीम जो है इस बकेट के अंदर जानी चाहिए,
But if steam is unable to circulate through this bucket, you will not get the proper results और autoclaving नहीं होगी. फिर जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टिकिंग करेंगे, पोरिंग करेंगे, तो आप कहेंगे मेरी कंटामिनेशन पता नहीं क्यों आ रही है. इस वजह से आ रही है कि प्रॉपर ऑटोक्लेविंग ही नहीं है. सो जब भी शो करना है तो उसको बड़ा प्रॉपर तरीके से उसके अंदर स्पेसेस रखें. अच्छा, दूसरी बात है, और ये जो बकेट अंदर वाली है, इसके साइडों पे कुछ वॉल्व्स हुआ करते हैं, उनको ओपन रखना है ताकि स्टीम अंदर जाए, सर्कुलेट करे. उसको बंद नहीं करना. ये भी देखिएगा, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, उसको बंद करना है, उसको खोलना है, उसको ओपन रखना है. गॉट इट? इसके अलावा अब पता कैसे चलेगा कि द मीडिया दैट यू हैव ऑटोक्लेव्ड, the patty plates that you have autoclaved, these are autoclaved properly or not? पता कैसे चलेगा? इसके दो तरीके. एक तो ये है कि ऑटोक्लेविंग के बाद आपके पास पैट्री प्लेट और मीडिया आता है, तो आप क्या करें, सिंपली एक पैट्री प्लेट को पोर कर दें मीडिया के साथ. ठीक है, इसको सॉलिडिफाई होने दें, एंड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन इसको ओवरनाइट इनक्यूबेट कर दें. अपना एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म अभी तक नहीं किया. ओवरनाइट इनक्यूबेशन के बाद अगर इसके अंदर कंटामिनेशन आ गई है, इसका मतलब ऑटोक्लेविंग प्रॉपर नहीं है, और आप अगले दिन इसको रिपीट करेंगे. इफ इन द नेक्स्ट डे देयर इज नो कंटामिनेशन and no growth on that plate, it means that autoclaving was proper. Now you are able to perform your experiment. This is the first method. It will take approximately 24 hours. But there are some other indicators. उन्हें कहते हैं autoclave indicators. If you have funds in the lab, you can purchase the indicators. Indicators क्या करते हैं? यहाँ पे इंडिकेटर एक टेप की तरह होता है, जिस तरह हमारे पास पेपर टेप होती है ना, पेपर टेप, उस तरह का इंडिकेटर, उस इंडिकेटर टेप. अब ये पैटी प्लेट का स्टैक रखा है, इसके ऊपर आपने टेप लगा दी, यहाँ पे छोटा सा उसका पीस काट के लगा दिया. उस टेप के अंदर हीट सेंसिटिव उसके अंदर केमिकल्स एंट्रैप होते हैं. If the autoclave is proper performed and autoclaving conditions जो है सक्सेसफुल हो गई थी, तो वो केमिकल्स हैं, they will change their color. जब आप टेप को बाहर निकालेंगे, if this tape has changed its color, it means that the autoclaving there is properly performed, and now you can perform your experiment. थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत सारी लैब्स में इस्तेमाल होता है, but still in some training labs उसमें शायद ये एक्टिविटी ना हो. ठीक है, this is autoclaving. और ये आपको इससे गो थ्रू होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू इट. इसके अलावा थोड़ा सा अगर मजीद हम देखें तो कुछ केमिकल्स जो हैं जो हम यूज करते हैं, या कुछ मेथड्स हम जो यूज करते हैं, उनको हम दो नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल. द थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल? जो स्टैटिक होते हैं, जो केमिकल डालते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, सर इसको हम किल नहीं करते, ओके, पर फिर उसकी ग्रोथ को रोकते हैं. Bacteriostatic chemicals are the chemicals which would halt the growth of the microbes. They would not eliminate or kill the microorganisms. For example, अगर आपके पास एक सैंपल है और सैंपल के अंदर 10 cells मौजूद हैं, and you have treated this sample with the bacteriostatic agent, तो आफ्टर ये इसी ग्रोथ यहीं पे halt हो जाएगी. It will not grow further. लेकिन अगर bactericidal हैं, they will kill these bacteria, फिर इसके बाद 10⁻⁹ पे आएंगे, 10⁸ पे आएंगे, 7 पे आएंगे, वगैरह वगैरह, and they will kill. Got it? Bactericidal and bacteriostatic. इसके अलावा जो हमारे पास जो मोड ऑफ एक्शंस हैं, जो हम हीटिंग करते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट एसिड्स को, अल्कलीज को, या कुछ और एजेंट्स को शॉर्ट टाइम के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो उनका मोड ऑफ एक्शन है, दैट इज एक्चुअली the protein denaturation. और ये protein denaturation जो है, that may be the coagulation, and protein का जो structure है उसकी denaturation, और ये temporary भी हो सकती है और ये permanent भी हो सकती है. If this is temporary, it means that these agents are bacteriostatic. If this protein denaturation is permanent, it means that these agents would be bactericidal. ठीक है. और इसके अलावा जो हाइड्रोलिसिस हुआ करती है हमारे पास प्रोटीन एक्सेट्रा की, दैट इज जस्ट ड्यू टू द यूज ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज. खैर इस पे बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. ऑटोक्लेव को देखिएगा,
फिर उस पर डिस्कशन करेंगे. अगर क्वेश्चंस हों तो ज़रूर पूछिएगा. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर शुड बी सम क्वेश्चंस अबाउट इट. नहीं आ रही. सर आई थिंक आपका माइक बंद है. ओके ताहिर, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है. ओके गुड. पता नहीं आवाज़ तुम्हें क्यों नहीं आती मेरी. सर जी हर दफा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है कि आवाज बंदे को नहीं आती. मैं आपका पूरा लेक्चर सुनता हूँ. गुड. अल्लाह अकबर. सो अयाज खान, हफ्सा प्रेजेंट फिरदौस. सर. ओके हफ्सा फिरदौस. प्रेजेंट सर. ओके बच्चे. एंड जन्नत रानी, मिनाल बेग, नाजिश रियाज, रिजवानुल्लाह, उम्मे रुबाब. प्रेजेंट सर. Next class is this one. No. Two. Abiha Babar, Ashish Naseem Lodhi, Present, sir. Asma Muhammad Mumtaz, Asma Razak, Yes sir. Iftihar, Yes sir. Aisha Tahir, Bisma Mehboob, Present sir. Asha Murtaza, Present sir. Faria Farhan, Gulnaz Bibi, Present sir. Hafisa Javeria Akbar, Present. Jannat Harun, Present. Zahra, Muhammad Abdullah. Abdullah is not here. Maheen is not here. Hamza, यस सर. Rania Hafiz. यस सर. सर आपने मेरी कल वाली एब्सेंट लगाई हुई है, मैं प्रेजेंट था. ऐसा कैसे हो सकता है नवीन? हम ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा रिमशा हामिद महमूद, रिमशा. Yes sir. Saad Naim Khan is present, and Saman Rauf Rame, Sana Liaquat, Sherdil Khan, Sherdil, Tayyib Tahir Abbas is there, Tayyiba Kamar, प्रेजेंट सर. Akbar Hussain, प्रेजेंट सर मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट है. Wakar is okay, Zaim Amjad, Yes, sir. okay, Muhammad Abdullah Gidar. Okay guys, we'll see you in the next class. सर. एक्सक्यूज मी सर.
सर हमारा क्विज कब होगा सेकंड इवन वालों का? वो पहले अनाउंस कर दिया है कि इवन रोल नंबर्स का 6th वीक में होगा। 6th वीक इज द कमिंग वीक। सर 6 के पहली क्लास में या दूसरी क्लास में? इट्स अप टू यू, मुझे आपकी मर्जी है। पहली क्लास में देना चाहें पहली में दे दें, सेकंड में देना चाहें सेकंड में दे दें। सर पहले में कर लें अगर किसी को इशू ना हो तो। ओके, आई डू नॉट हैव एनी इशू। सर सिलेबस ही बता दें थोड़ा सा, वो ये जो हमने आज वाला पढ़ा ये भी इंक्लूड होगा? यस, जब मैंने अनाउंस किया था देयर आई टोल्ड यू दे वुड ऐड द सिलेबस अप टू द 5th वीक।